हम डेंटल ट्रामा में उसको पढ़ते, उसकी मैनेजमेंट और उसकी कॉम्प्लिकेशंस। So dental trauma, especially the involving the dental tooth structure, okay, and some supporting tissue involving the periodontium, alveolar bone, okay. So that includes in this dental trauma. Those trauma जो आपके jaw fractures and everything है, वो sometimes they could be associated with the dental trauma. But we are focusing on dental trauma particularly that involve your tooth structure. The loss of tooth structure or damaging the supporting tissues of the teeth. Okay, so that is the today topics. So whenever you receive a patient with the history of the dental trauma, there are some particular questions you need to ask from the patient. These are the particular questions which should be asked from the patient with the history of any dental trauma. आप क्वेश्चंस यहाँ देखेंगे. नंबर वन है व्हेन डिड द ट्रॉमा अकर, and every questions have its importance because we want to know something and that will affect the treatment plan. So when did the trauma occur? So it indicates how what's actually the time when elapsed after the trauma. So that time sometimes is important to know that how old is the trauma. Why we need to this question or answer of this questions? कोई बताएगा? आपके पास कोई पेशेंट आया है with the trauma involving the loss of tooth structure, and you are asking that when did the trauma occur? Why you ask this question and what you want to know that and how it affect the treatment plan? सर ये जो एक्स्ट्रा अल्वियोलर ड्यूरेशन टाइम जिसको हम बोलते हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक ऐसी ट्रामा हुई है कि एक टूथ कंप्लीटली अवज्ड हुआ है, या एक ऐसी ट्रामा है जिसमें एक बंदे की टूथ की क्राउन, उसकी इनेमल, डेंटिन और पल्प तीनों फ्रैक्चर हुए हैं ना, तो ये एक्सपोजर टाइम हमारी ट्रीटमेंट प्लानिंग में हमें हेल्प करती है. मिसाल के तौर पर अगर ड्यूरेशन टाइम बहुत ज्यादा है तो हमारा पल्प नेक्रोस हुआ होता है, तो वी गो फॉर कंप्लीट आरसीटी एंड देन क्राउन कैप करते हैं. या अगर कम होती है तो वी कैन गो फॉर मेंटेनिंग द वाइटलिटी ऑफ पल्प, पल्प को वाइटलिटी की मेंटेन करते हुए पल्पोटमी करते एंड वी रिस्टोर दैट. सो इसलिए मेरे ख्याल से yes. एक तो pulp के regarding, if pulp is exposed, so if it is the patient is coming within 24 hours, there are certain other factor as well, but the time also a factor. Okay, whether we go for root canal or we go for vital pulp therapy procedures like your direct pulp capping. So if it is coming within 24 hours and is a small exposure, we can go for direct pulp capping. But if it is more than 24 hours, then we can think about the pulpotomy or pulpectomy. So that is the how that time and this factor affect the. और जो दूसरा आपने मिसाल दिया है कि एवल्जन का, तो टूथ एवल्स हो गया है, टोटली टूथ came out from the socket. So the time is so critical in this case कि जितना टाइम गुजरेगा तो एक्स्ट्रा अल्वियोलर जो आप कह रहे हैं कि टाइम उसका होगा, दैट अफेक्ट द प्रोग्नोसिस ऑफ द टूथ. कि एवल्स टूथ को हम रीप्लांट करते हैं एंड रीप्लांटेशन जो टाइम जितना द ट्रॉमा
पेशेंट जल्दी रिपोर्ट करेगा तो उतना जल्दी जो है उसकी प्रोग्नोसिस बेहतर होती है। अदरवाइज जो पीडीएल सेल्स होते हैं दैट विल नॉट सर्वाइव आफ्टर 30 minutes, so then the things will be more difficult in terms of prognosis. तो अभी हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें तो, और इसमें और मज़ीद इस फैक्टर का, इस क्वेश्चन का रिलेवेंसी टू द ट्रामा थोड़ा समझ में आएगी। जैसे दूसरा इंट्रूजन फॉर एग्जांपल हुई है, द टूथ इज इंट्रूडेड इनसाइड, तो अंदर चला गया है, तो उसमें भी टाइम का फैक्टर होता है कि इफ इट इज fresh intrusion then it can come out spontaneously or with any surgical, or sometimes if it is time ज़्यादा हो गई है then there could be other surgical or orthodontic। तो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो दिस क्वेश्चन ज़रूर पूछना जब भी पेशेंट आपके पास आए विद ट्रॉमा, so you must ask this question, when did trauma occur? Okay, so that will give you some idea how to manage the case. Then how did the trauma occur? So this question will actually the severity of the trauma. It is a road accident or it is the sport activity or anything. If it is a road accident, there could be some associated other injuries, including the uh, brain injuries, including jaws injuries, and all other things. So you have to check them out. So this is how, this give you that idea that it could be localized or it's some other things can जो impact होगा वो accident का, तो उससे you can assume or you can imagine the severity of the trauma. So this questions again important. Where there are any other injuries, वो आप उससे पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम पूछते हैं कि अनकॉन्शियसनेस हुई थी व्हेन at the time of trauma, or he or she got that other treatment of other injuries are like this. So again severity of the trauma आपको वो अंदाजा होगा। What initial treatment was given? So this questions again कि एक तो जो समटाइम्स जो एंटी टिटेनस जो हम लगाते हैं बूस्ट, वो भी इसमें आपको पता चलेगा। और अदर सम केसेस में ये भी होता है कि पेशेंट खुद रीप्लांट कर देते हैं एबल्स टूथ को। तो दिस विल हेल्प यू अगेन। Have there been any other dental injuries in the past? So this way you can check the frequency of the trauma. If you are going to restore the tooth, you have to keep this in mind that patient is frequently exposed to the injuries, mostly sport injuries, or then you will uh, take some years to reinforce your restoration. तो इम्यूनाइजेशन जैसे मैंने बताया कि टेटेनस इम्यूनाइजेशन के बारे में आप उसको पूछेंगे। So there some questions हैं जो when, how, where, what the trauma occur. So this question must be asked when you receive any patient with the history of trauma. You must do the examination. These are particular with the patient which having a history of trauma. So after a person interviewing the patient, then you may check the uh, extraoral and intraoral examination must be done. In extraoral wounds and palpation of the facial skeleton to take any other injury of jaws, okay, maxilla, mandible, or soft tissues, oral mucosa, gingiva, any bleeding site. So palpation of alveolar, so as I told you, the supporting tissues. So alveolar bone is fractured or not. So teeth are displaced, displacement of the teeth, abnormalities in occlusion. Patient is unable to to occlude. It means there could be uh, fracture of the jaws, especially mandible. When there is a mandibular fracture, the patient's difficult to close the mouth. Condylar हो या even body fracture.
So this could be a problem. And occlusion, which indicates the jaw fracture. The extent of tooth fracture, if the dental coronal fracture is there, how much is extended, pulp exposed or not, or it is involving, the periodontium. Color change होगा, mostly color change with the old history of the trauma. Color change हो जाता है because when the trauma occur, there is some bleeding into the pulp. That bleeding वो आहिस्ता आहिस्ता absorb that blood product into the dentine, and then blood product जो है वो break होती है, and then जो dentine color change with the time. So mostly with the dark tooth, single dark tooth patients sometimes coming, उस वक्त symptoms नहीं होते हैं क्योंकि pulp is usually not exposed, और sometimes exposed भी हो, तो sterile होता है, अगर necrose हो जाता है, but when it gets the infection, तो फिर symptoms appear होते हैं, and patients then uh, comes to your clinic और then for your treatment, तो उस वक्त उसका कलर काफ़ी चेंज हुआ हुआ होता है. तो मोस्टली द कलर चेंज इन द डेंटिन indicate the history of trauma. Sometimes yellowish due to the calcification, or sometimes it is dark due to the breakdown of blood products and deposition of these blood products into the dentine. Mobility of the teeth, mostly due to the alveolar fracture, due to the periodontium, luxative injuries, cause the luxation and intrusion, extrusion sometimes, displacement, and root fracture. These are mostly horizontal root fractures, not vertical. Vertical mostly occur in posterior teeth due to the, again, mostly the occlusal trauma or occlusal forces. But with the external trauma, mostly anterior teeth exposed, and the root fracture are mostly horizontal, not vertical. So horizontal root fracture, especially in the middle third or coronal third, make the teeth mobile. So teeth become mobile, and that mobility indicates that there could be a fracture of the root either, or sometimes the alveolar bone fracture. Reaction of vitality, taste, and percussion, mostly loss, but it is a false negative sometimes. With the time, the revascularization may occur, or sometimes even vascularity is there, but the nerve response loss. That indicates some false negative response, and with the time, the nerve response may restore. So the response will positive become at least after 30 days. So that is a time period. So initially, the vitality test is not so reliable when the patient comes to you with a trauma. Percussion भी tender tooth हो सकता है due to the luxative injuries, but the periapical area, periradicular area get inflamed. The impact of trauma leads to inflammation in the periradicular area. The initially pulp could tooth could be tender. In luxative injuries, intrusion, extrusion, and lateral displacement of the tooth. That again, when you percuss the tooth will tender. So this all happen. So they have to check your examination properly, and then of course the radiographic examination and everything. So here you can see a patient with the trauma, history of trauma, and laceration, soft tissue. Sometimes the pieces of the tooth structure even embedded into the lips and the gingiva, and cause the injuries to the soft tissues. Here you can see a fracture involving the maxillary central incisal edges and the even lower incisor edges. So these fragments can be injurious to soft tissue. Again, you can see a patient with the trauma, it's all that laceration to the soft tissues, gingiva, and all you have to do the suturing and to control the bleeding, and then soft tissue, you have to do the suturing of the soft tissues.
तो उसमें कोई बाद देन गो फॉर हार्ट टिश्यू मैनेजमेंट जो भी आपको करनी है। रेडियोग्राफ का बहुत रोल होगा। पेशेंट जब भी आएगा आपके पास, यू हैव टू टेक द रेडियोग्राफ। That could be a periapical radiograph. Sometimes we go for OPG to check the even the jaws status of the mandible, maxilla, and all other condylar fractures. Even could be associated with the teeth fractures. So there are some other specific radiographic views, especially in children when there are the deciduous teeth, primary teeth, especially they are intruded inside. We want to know that if they intruded lingually or labially, whether you have to remove it or you have to leave them. So these radiographs are more important. Sometimes tooth are missing, lost. So we need to take the radiograph. We assume that lost tooth is actually avulsed, but sometimes it's intruded. So when we take the radiograph, you just see the tooth is inside. So that radiograph will help you. Again, a radiograph will help you to check the root fracture, horizontal root fracture. That could be visible on radiograph. Pulp vitality test, we discussed that pulp vitality test in initial days. It could be false negative. So pulp vitality, vital is blood supply is intake, but now response could be negative due to the impact of the trauma. And that could be restored within a month. So that false negative response is common in initial days. Percussion, we discussed. Transillumination mostly in vertical root fracture or cracks of the teeth in posterior area, that is more helpful. So guide to prescription or radiograph dentoalveolar injuries, जैसे मैंने कहा कि यहाँ आप anterior maxillary occlusion और anterior mandibular occlusion, occlusal radiograph sometimes, occlusal radiograph जो आपके देते हैं, panoramic view है, periapical view जैसे मैंने, true lateral maxilla for intrusion, true lateral view, true lateral view अभी मैं आपको एक तस्वीर दे रहा हूं। ये तो occlusal view है। occlusal view लेंगे आप, sometimes this view is you take the horizontal root fractures, especially in area, and yeah, intruded, the extension of intrusions, how much it is intruded. So the radiograph will help you, of course. Yeah, this is the what we call lateral anterior view. A lateral anterior view, you can see here intruded central maxillary central inside is a primary tooth, and it's going more labially. As you know, the tooth buds of permanent teeth are lying palatal or lingual to the roots of the primary teeth. If the primary teeth are intruded lingually, their roots are going more lingual direction. They could be damaging to your permanent teeth. So that tooth should be removed. So you should check a radiograph, take the radiograph and check the tooth is going lingually or it is going labially. If it's intruded more labially and away from your permanent tooth, so there's no need to remove it. Just leave it. Either it will be resolved or sometimes it will come out spontaneously. So this is how the radiograph will help you in especially in case of intrusion of a primary teeth. Because you know the बच्चे जो होते हैं वो they are more exposed to the trauma. गिर जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो उसमें उन जो प्राइमरी टीथ का ट्रॉमा is more common, more frequent than permanent teeth. Now you know the classification or types of the dental trauma is so important. और ये दे different you know classification है. ये एंडरसन की classification है, and that is you can see here it dividing into crown fractures, crown fractures, root fractures, and Luxation.
लक्सेशन इंजरी। ठीक है। अच्छा, in starting from crown fracture, you can see here two types of the crown fracture. One is uncomplicated crown fracture and other is complicated crown fracture. ये बंद कर दें, अपना म्यूट कर दें, आवाज आ रही है। जब आपको बात करनी हो तो फिर आप अनम्यूट करें, अदरवाइज म्यूट रखें। ठीक है, थैंक यू। So crown fracture, uncomplicated crown fracture and complicated crown fracture. Uncomplicated, कोई बताएगा कि क्या इन दोनों में फर्क है, complicated and uncomplicated? सर अनकॉम्प्लिकेटेड में पल्प इन्वॉल्व नहीं होता और कॉम्प्लिकेटेड में पल्प इन्वॉल्व हो जाता है ड्यूरिंग फ्रैक्चर। ठीक है, ठीक है। तो अनकॉम्प्लिकेटेड सिंपली आप अनकॉम्प्लिकेटेड है तो इट इज इन्वॉल्विंग enamel dentin but pulp is not exposed. So and complicated enamel fracture, dentin fracture, pulp exposed. So when the pulp exposed, it make more little bit complicated in terms of treatment and management and prognosis. So that's why it's called complicated crown fracture. तो सेकंड कैटेगरी है क्राउन रूट फ्रैक्चर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, क्राउन रूट फ्रैक्चर? जी, कोई बताए? सर जिसमें क्रॉन और रूट दोनों इन्वॉल्व हो, इस तरह का फ्रैक्चर हो तो उसको क्रॉन रूट फ्रैक्चर कहते हैं। अच्छा, कोई और? वर्टिकल वर्टिकल फ्रैक्चर ऑफ रूट और क्राउन। सर इन्वॉल्विंग क्राउन और रूट बोथ। बहुत अच्छा, और कोई इसमें? जी, क्राउन रूट फ्रैक्चर जो है, जहां देयर इज अ जंक्शन बिटवीन द क्राउन एंड द रूट, जंक्शन होता है ना, सीमेंट और नमल Yes, sir. जंक्शन, सर्वाइकल एरिया जिसको कहते हैं, the fracture occurred at that area, horizontal। ये समझें कि गर्दन उड़ जाए दांत की, Pick up the ठीक है ना? तो that is a crown root fracture. When the crown root fracture with the junction between the root and crown, the fracture occurred at that area, and mostly they are horizontal fracture. So that separating the crown from the root, that is called the crown root fracture. ठीक है। थर्ड कैटेगरी है रूट फ्रैक्चर। तो जैसे अर्लियर मैंने आई टोल्ड यू दैट रूट फ्रैक्चर्स आर हेयर मोस्टली हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर की हम बात करें। तो हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर जो है, दैट द रूट फ्रैक्चर मींस दे आर कन्फाइंड टू रूट, दे आर नॉट इन्वॉल्विंग द क्राउन। तो रूट को डिवाइड करते हैं हम अगेन अपेक्स के एरिया में। अगर फ्रैक्चर हो जाए हॉरिजॉन्टल तो एपिकल थर्ड, मिडिल थर्ड एंड कोरोनल और सर्वाइकल थर्ड। तो समटाइम कोरोनल और सर्वाइकल थर्ड को हम क्राउन रूट फ्रैक्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर सर्वाइकल एरिया पे हुआ है और रूट सेपरेट हो गई, क्राउन सेपरेट हो गया, दैट कुड बी अ क्राउन रूट फ्रैक्चर। तो बट और पीछे मिडिल थर्ड, हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर ऑफ द रूट और एपिकल थर्ड इन्वॉल्व हो तो रूट फ्रैक्चर उसमें हो। लक्सेशन इंजरीज से व्हाट डू यू मीन बाय लक्सेशन इंजरीज? सर वो इंजरी जिसमें एक टूथ डिस्प्लेस्ड हुआ हो, वी कैन कॉल देम एज लक्सेशन इंजरीज। राइट, ओके। कोई और इसको मजीद करेक्ट करे? ये कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लक्सेशन इंजरीज। ओके, नॉट नेसेसरली कि ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट मींस देयर इज मूवमेंट फ्रॉम इट्स प्लेसमेंट, जो उसकी पर्टिकुलर प्लेस है अपनी ये टूथ की।
लक्सेशन मीन्स सम मोबिलिटी उसमें दांत में आ जाए ड्यू टू द डैमेज टू द पेरोडोंशियम, ठीक है। तो दैट इज वी कॉल लक्सेशन इंजरीज। लक्सेटिव मतलब थोड़ी सी उसमें कोई मोबिल, क्योंकि पेरोडोंटल टिश्यूज अल्वुलर बोन सपोर्ट करता है और वो डैमेज हो जाए, तो अगर ये इसको हम इस तरह से हम करते हैं कि क्राउन फ्रैक्चर हो, रूट इन्वॉल्व हो और फिर पेरोडोंशियम इन्वॉल्व हो। तो पेरोडोंशियम जब इन्वॉल्व होगा तो उसको हम लक्सेशन इंजरीज बोलेंगे। और टूथ में हल्की मोबिलिटी आएगी और डिस्प्लेस भी हो सकता है। तो डिस्प्लेस अगर सिवियरिटी ज्यादा होगी लक्सेटिव इंजरी तो टूथ ज़ाहिर है डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जैसे इसकी कैटेगरी आप ये देखें कि कंकशन है, सब लक्सेशन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, मगर दे आर अगेन टाइप्स ऑफ द लक्सेटिव इंजरीज। और बाकी डिस्प्लेसिंग इंजरीज हैं जिसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको हम लेटरल लक्सेशन बोलते हैं, इंट्रूजन हो तो हमको इंट्रूसिव लक्सेशन बोलेंगे, एक्सट्रूजन हो समटाइम्स टूथ मूव आउट, नॉट इंटायरली बट थोड़ा सा आउट ऑफ जो होता है ओक्लूजन, तो दैट इज एक्सट्रूजन। और बिल्कुल आउट हो जाए कमिंग, तो दैट इज द अवल्जन। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द लक्सेटिव इंजरीज। तो ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और मैनेजमेंट कैसे होगी उसको थोड़ा देखेंगे। नाउ मैनेजमेंट डिपेंड कि टूथ इज प्राइमरी और परमानेंट, क्योंकि प्राइमरी टीथ जो है वो जाहिर है उसका एक टाइम शॉर्ट टाइम है, तो हम कोशिश करते हैं कि टूथ को सरवाइव हो और दैट सरवाइविंग टूथ अप टू दैट इट्स जो भी इसका लाइफ स्पैन है। और सो इसमें इतनी डेफिनेटिव काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हम नहीं करते जितना परमानेंट में टीथ में करते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गई हर टाइप की मैनेजमेंट प्राइमरी टीथ में और परमानेंट टीथ में। तो इंजरीज टू द प्राइमरी टीथ हम पढ़ते हैं पहले सारी ये इंजरीज हाउ विल अकर और इन प्राइमरी डेंटिशन। बच्चे का एग्जामिनेशन फुल करना होता है ताकि कोई और पार्ट ऑफ द बॉडी इंजरी एवरीथिंग यू हैव टू चेक इट। So just starting from the crown fracture which involving your primary tooth structure, and वो उसमें हमने पढ़े दो टाइप्स हुए, one is uncomplicated and other is complicated. So if it is uncomplicated crown fracture which involving enamel and dentine but not exposing, complicated crown fracture enamel dentine and pen expose. नाउ अगर आपके पास प्राइमरी टूथ हो और अनकॉम्प्लिकेटेड क्राउन स्ट्रक्चर हो तो क्या करोगे ट्रीटमेंट? रिमेन एज सर इट इज। हाँ, चाइल्ड का जो एज है उसी से भी पता चलता है ना कि वो कौन से एज में टेम्परेरी पीलिंग करके वैसे भी वो टूथ एक किसी उसकी भी शेडिंग एज में होगी। हो, इसमें एज क्या होगी? पेशेंट अनकॉम्प्लिकेटेड क्राउन इनेमल थोड़ा टूटा है, डेंटिन एक्सपोज हो गई है, पल्प एक्सपोज नहीं है, क्या करोगे? प्राइमरी टूथ है। सर रिस्टोर कर देंगे इनेमल को, मतलब रिस्टोरेशन करेंगे। हाँ, इनेमल को रिस्टोर करे या कंपोजिट लगा दो या ना भी लगाओ तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, जस्ट थोड़ा स्मूथन कर दो, ठीक है। और डिपेंड करता है कि the child is cooperating or not, sometimes very difficult. So if it's their child, then you can restore with composite simple, no problem. Or sometimes even not restoring and leaving it as, so it is also it will work. Challenge ये तो simple, but complicated crown fracture it is not simple. When pulp is exposed, now pain sometimes. So यहाँ मैंने दो तीन चीजें यहाँ लिखी हुई है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ टूथ एंड चाइल्ड बिहेवियर क्या होगा। जैसे अभी यहाँ एज का होगा कि पेशेंट की एज कितनी, अभी फॉर एग्जांपल पेशेंट इज 6 ईयर ओल्ड, अभी सेंट्रल इंसाइजर प्राइमरी टूथ परमानेंट नहीं आया, मगर जो है पल्प एक्सपोज हो गई है और ट्रॉमा हो गई है, तो यहाँ जाहिर है हम कोई इतना हो सकता है वी कैन गो फॉर एक्सट्रैक्शन कि अब शायर 6 ईयर ओल्ड है तो सेंट्रल जो परमानेंट इज कमिंग,
बट यही पेशेंट अगर 4 years एज में आएगा तो जाहिर है देन वी वांट टू रिटेन द प्राइमरी टूथ फॉर एटलीस्ट फॉर 6 एट द एज ऑफ 6 years। तो ये चीज़ें भी देखनी होती है कि अब अगर टूथ शेड होने वाला है और उसको कोई प्रॉब्लम हुआ तो बेटर गो फॉर एक्सट्रैक्शन, और अगर उसमें अभी टाइम है तो गो फॉर देन मैनेजमेंट। तो इसमें आप देखिए वही ये प्रॉब्लम होता है कि रूट्स जो है समटाइम्स वेरी अर्ली अगर फ्रैक्चर हो जाए और पल्प एक्सपोज हो जाए तो पल्पोटमी करनी पड़ती है। फिर यहाँ डायरेक्ट पल्प केपिंग मोस्टली प्राइमरी टीथ में हम नहीं करते, तो या तो पल्पोटमी मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट होता है वो पल्पोटमी करते हैं, और फार्माकोरिसोल पल्पोटमी करें, या आप कोई और जैसे हमने पढ़े पल्पोटमी प्राइमरी टीथ फेरिक सल्फेट है, या और मॉडर्न जो अभी बायो मटीरियल्स है वो से कर सकते हैं आप। तो यू कैन गो फॉर पल्पोटमी, that will be better if patient's child behavior and all that can be managed easily, so that will go for that। mature tooth or root हो तो you can go for even a larger exposure हो जाए तो in that larger exposure you can go for a complete pulpectomy, root canal भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। so it depend upon these things। फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट आप देखिए इसमें पल्प अभी एक्सपोज नहीं हुआ, डेंटिन एक्सपोज है, एनामल चिप ऑफ हो गया है, और दैट सिंपली आप उसको अगर समटाइम सेंसिटिविटी होती है तो रीस्टोर कर सकते हैं विद कंपोजिट एंड एवरीथिंग। और यहाँ आप देखें कि रेड स्पॉट नजर आ रहा है, दैट इंडिकेट द पल्प इज एक्सपोज्ड। तो हेयर द पल्प इज एक्सपोज्ड। और इस दूसरे सेंट्रल में देखें यहाँ जिंजाइवल सल्कस से ब्लीडिंग आ रही है, दिस इज इंडिकेट द लक्सेटिव इंजरीज, पेरोडोंटियम आल्सो इंजर्ड। तो ये अभी आप लक्सेटिव इंजरी की मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मगर यहाँ इसमें ये भी है। तो इसमें पल्प एक्सपोज्ड हो गया है, तो अब क्या ट्रीटमेंट करोगे आप? पेशेंट है फॉर एग्जांपल एज उसकी 4 year, अभी गिरा है 2-3 घंटे हो गए और आपके पास आ गया, क्या करोगे? पल्पोटमी करेंगे सर, पल्पोटमी करेंगे आप? हाँ टेम्पररी रेस्टोरेशन लगाएंगे सर टेम्पररी रेस्टोरेशन किस चीज की? पल्पोटमी के बाद जो रेस्टोरेशन करेंगे सर, मतलब रिस्टोर करेंगे सर। ठीक, रिस्टोर कर गो फॉर पल्पोटमी। जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट पल्प केपिंग अगर ये परमानेंट होता तो वी कैन गो फॉर डायरेक्ट पल्प केपिंग एज वेल। वैसे इसमें भी कर सकते हैं क्योंकि बच्चों में मोस्टली डायरेक्ट पल्प केपिंग के फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक दफा बच्चा हाथ आ जाए दूसरी दफा उसका आना बड़ा मुश्किल होता है। सो बच्चे जो है इतने कोऑपरेट, या समटाइम्स हमें इसमें करना पड़ता है जनरल एनेस्थीसिया में या जो है रिलेटिव एनेस्थीसिया में सेडेशन दे के। तो इन दिस केसेस के हम कहते हैं कि वो ऐसा ट्रीटमेंट कर दो कि दोबारा फिर उसको ना बुलाना पड़े। तो दैट्स वाई डायरेक्ट पल्प केपिंग से इतना वो नहीं होता, वो फेल्यूर भी हो सकता है। तो दैट्स गो फॉर पल्पोटमी एटलीस्ट, पल्पोटमी कर दे इसको, पूरा पल्प चेम्बर एक्सपोज करें, पल्प को कोरोनली रिमूव करें एंड देन फार्माक्रिसोल अप्लाई करें, या आप कोई और MTA वगैरह वॉट एवर यू कैन डू दैट एंड सील इट विद GIC एंड कंपोजिट। ओके, तो इसको आप कर सकते हैं। तो दैट कुड बी मैनेज लाइक दिस। एक्सट्रैक्शन वगैरह नहीं करेंगे, अभी 4 साल का बच्चा है। अच्छा, ये तो कौन सी टाइप का फ्रैक्चर है? कॉम्प्लिकेटेड सर। कॉम्प्लिकेटेड कोरोनल फ्रैक्चर है। यस सर। कोई और बताए इसमें? Complicated crown root fracture is it? कॉम्प्लिकेटेड क्राउन रूट फ्रैक्चर। अर्दिल, अर्दिल, ये बंद कर, AC बंद कर, गर्मी की।
जी, कॉम्प्लिकेटेड क्राउन रूट फ्रैक्चर, मगर ऐसा टर्म तो मैंने कोई नहीं बताया था। कॉम्प्लिकेटेड में तो कोरोनल फ्रैक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड। क्राउन रूट फ्रैक्चर में कोई दो टाइप्स नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड हो या अनकॉम्प्लिकेटेड, क्राउन रूट फ्रैक्चर। तो यहाँ आपका ये टाइप है क्राउन रूट फ्रैक्चर। तो सर्वाइकल एरिया पे है ना, क्राउन जो है वो हो गया अलग और रूट अलग हो गई, ठीक है। दैट इज अ क्राउन रूट फ्रैक्चर। अच्छा, क्या मैनेजमेंट करोगे? बच्चा अगेन आप देखें कि उसकी प्रीमो से डी आ गई, ई तो अभी आई नहीं है, और के नाइन थोड़ा बहुत आ रहा है। तो क्या एज होगी पेशेंट की, आपको तो अंदाजा लगाए? आवाज आ रही है? यस सर, यस 3 सर। 4 इयर्स होगी। 4 इयर्स में तो ई तो आ जाता है फुल यार। 3 ऑलमोस्ट। 3 में भी आ जाता है। कंप्लीट प्राइमरी डेंटिशन कब तक आ जाती है? यस सर, 4 ईयर तक आ जाते हैं। नहीं, 4 ईयर तक पहले आ जाती है। 2.5 ईयर तक आ जाती है, 2.5 2.5 ईयर्स to तक 3 years। हाँ, 2.5 ईयर, 2.5 ईयर्स तक तो फुल कंप्लीट प्राइमरी डेंटिशन अवेलेबल होती है। ये तो बच्चा 2 या अंडर 2 इयर्स का लग रहा है मुझे, ठीक है। इसका ये क्राउन रूट फ्रैक्चर हो गया है। बच्चा आपके पास आ गया है, माँ उसकी लेके कि गिर गया है बच्चा, बिस्तर से गिरा नीचे और ये हुआ। अब बताओ ट्रीटमेंट क्या करोगे इसका? जी, फार्माक्रिसोल पल्पोज में कर लेंगे। इसकी पल्पोटमी करोगे? अभी देखते हैं, क्राउन तो सारा खत्म हो गया, वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, वो सेपरेट हो गया। बाकी रह गए रूट अंदर। हम्म। इसको कैसे अटैच करोगे रूट्स के साथ, है क्या पॉसिबल? तो बाकी रह गई रूट। अब रूट को अब पल्पोटमी करोगे, क्या करोगे? और रूट भी सर वो कंप्लीटली डेवलप नहीं है अभी तक। हाँ, हो सकता है वो भी कंप्लीट डेवलप ना हो रे। यस। तो इस केस में आपने क्या करना है? सर हम स्प्लिंट कर सकते हैं अगर पल्प वाइटल है तो। और नो, 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 नॉट एट ऑल। इस ये क्राउन रूट फ्रैक्चर में स्प्लिंट नहीं करते, कभी भी नहीं हील होगा वो, ठीक है। जंजाइवल सल्कस में फ्रैक्चर इन्वॉल्व हो तो वो नहीं हील होता, ठीक है। हाँ, अंदर बोन लेवल में हो तो फिर वो हील हो जाता है, फिर स्प्लिंट करेंगे जिसको हम हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर, अभी हम आते हैं उसके। मगर अगर जो फ्रैक्चर लाइन कम्युनिकेटिंग द जिंजाइवल सल्कस, अगर उसको स्प्लिंट करेंगे, जो भी करें आप, इट विल नॉट हील। यू नीड टू रिमूव द कोरोनल फ्रैक्चर फ्रैगमेंट जो होगा पार्ट। तो क्राउन अगर सेपरेट हो गए फ्रॉम रूट तो यू हैव टू रिमूव द क्राउन, दैट कैन नॉट बी रीअटैच्ड और ही। so you have to decide the rest of the root which is remaining होगी। तो उसके बारे में क्या करना है, उसका छोड़ना है, निकालना है। प्राइमरी बच्चा है दो, चलो 2.5 साल का है बच्चा या 2 साल का बच्चा है, बताओ कुछ। कुछ तो आप डेंटिस्ट होगे, लोग आपसे एडवाइस लेंगे। बच्चे आपके भी घरों में, सबके होते हैं घरों में, वहाँ भी ये जो होते हैं कॉमन केसेस, तो कहते हैं कि भाई हमारा जो है वो डेंटिस्ट है, उसी से पूछ लेते हैं कि क्या करें इसका। जी, रूट को छोड़ोगे, निकालोगे? सर वो देखेंगे कि सर कितना डेवलप है बोन में अंदर, है अब सपोर्ट चलो इसके लिए कि डेवलप्ड है तो उसको क्या करोगे? डेवलप्ड भी होगी तो यार। हाँ, डेवलप हो तो सर उसको ये करेंगे कि जो इसका फ्रैक्चर कोरोनल सेगमेंट है इसको हम सर निकाल लेंगे, राइट। चलो वो तो और पूरा निकाल गया, और रूट को क्या करना है? रूट में सर इसको पहले अच्छी तरह डिकंटामिनेट करके, हम्म। और मेरे ख्याल से सर इसको
फार्माक्रिसोल देंगे और ऊपर से GIC बिल्डअप कर लेंगे। कैसे रुकेगा GIC इधर? देखिए परमानेंट होता तो हम कुछ कर लेते। अभी अब आएंगे परमानेंट को किस तरह से। अगर इस तरह से परमानेंट तो जाहिर है जैसे मैंने कहा कि फिर हम वी आर गोइंग मोर taking some risk even to retain the tooth। और यहाँ प्राइमरी में इतनी रिस्क नहीं लेते हम, क्योंकि जाहिर है ओवरऑल जो हमारा होता है कि वी कैन सेव द परमानेंट, क्योंकि लाइफ लॉन्ग टूथ वही है तो उसी को ही हमें नज़र रखना है। तो प्राइमरी टीथ की इम्पोर्टेंस है अपनी जगह, मगर नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ परमानेंट टीथ। ठीक है, तो अगर इफ यू आर रिटेनिंग दिस रूट, दैट रूट में बी इन्फेक्टेड एंड कोई रेस्टोरेशन यहाँ इवन नॉट वर्क, तो उसमें फिर दैट कुड बी इन्फेक्टेड एंड दे कैन डैमेज द डेवलपिंग टूथ, परमानेंट टूथ। तो मोस्टली हम डिसाइड यही होता है कि इन दिस केस रूट रिमेनिंग जो है वो उसको भी रिमूव किया जाए। ठीक है ना, so that will be more appropriate one, we can't restore this remaining root। कुछ sometimes आप इसको छोड़ भी सकते हैं वैसे रूट को, पल्प निकाल दें और ये वो, मगर इन्फेक्टेड हो सकती है वो, और दैट इन्फेक्शन पेरिएपिकल पैथोलॉजी कोई डेवलप हो सकती है, और दैट पैथोलॉजी कैन डैमेज योर डेवलपिंग परमानेंट टूथ। ठीक है, तो ये रिस्क लेना काफ़ी रिस्की होगा। So that's why that remove both portion, coronal and root as well, in case of primary teeth। So no treatment if tooth is stable। अच्छा, ये रूट फ्रैक्चर, अच्छा तो ये हमने क्राउन रूट फ्रैक्चर पे। अब हम रूट फ्रैक्चर पे आते हैं। रूट फ्रैक्चर जो है वो जैसे मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं मिडिल थर्ड और एपिकल थर्ड पे। तो अगर हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर मोस्टली समटाइम्स टूथ मोबाइल होता है, समटाइम टूथ नॉट मोबाइल होता है, और एक्सरे जब लेते हैं तो पता चलता है कि फ्रैक्चर लाइन नजर आ रही है रूट के ऊपर, और वो टूथ रूट इज फ्रैक्चर्ड हॉरिजॉन्टली। तो नो ट्रीटमेंट इफ टूथ इज स्टेबल, उसमें कोई मोबिलिटी नहीं, नथिंग, कोई पेन नहीं है तो छोड़ दो। मोबाइल कोरोनल सेगमेंट शुड बी रिमूव्ड। अगर सर्वाइकल एरिया जैसे ये था उसमें रिमूव कर दे। ठीक है, समटाइम्स, और एपिकल पार्ट अगर छोटा रह जाता है अंदर तो उसको छोड़ दें, वो रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर पूरी रूट है तो उसकी रिजॉर्प्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे केस मैंने दिखाया आपको, तो उसको फिर रूट को रिमूव करना पड़ता है। अगर पार्ट ऑफ द रूट है, एपिकल थर्ड रूट का बचता है, तो यू कैन लीव इट, वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब ये केस है, ये देखें यहाँ आपको ये अक्लूजल एक्सरे है, क्या एक्सरे पे नजर आ रहा है आपको? बताओ। हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर है सर। कौन से दांत भी बताओ ना। सेंट्रल इंसाइजर दोनों। तो दोनों सेंट्रल इंसाइजर पे। प्राइमरी है ये परमानेंट है? इट्स अ प्राइमरी। प्राइमरी है, परमानेंट आर कमिंग, आप देख सकते हैं कि ये परमानेंट है, अभी आए नहीं है। और ये आपके सेंट्रल जो इंसाइजर दोनों फ्रैक्चर्ड है। दिस इज वी कॉल हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर, मोस्टली मिडिल थर्ड या मोर कोरोनल थर्ड रूट इन्वॉल्व है। क्या करोगे इस केस का? टीथ दोनों दोनों दांत मोर, अगर कोरोनल फ्रैक्चर हो तो जाहिर दांत मोबाइल होते हैं, लूज हो जाते हैं टीथ, जो कोरोनल पार्ट है। ट्रीटमेंट सर क्या? पल्प वाइटलिटी टेस्ट चेक करेंगे पहले, क्या? अगर वाइटल है। नो 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 सर, एक्सट्रैक्ट करेंगे दोनों को। कोई वाइटल हो क्यों या सर? नॉन, को क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रीटमेंट पे? सर आरसीटी नहीं, ये तो प्राइमरी है ना, सही है, तो इसको स्प्लिंट भी नहीं कर सकते। आपने पहले कहा ना स्प्लिंट नहीं करेंगे क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। अगर ज्यादा कोरोनल फ्रैक्चर हो
और कम्युनिकेटिंग विद जिंजाइवल सल्कस, तो उसको हम स्प्लिंट करना कोई फायदा नहीं होता। अगर एपिकल पार्ट पे ज्यादा हो और नॉट कम्युनिकेटिंग विद जिंजाइवल सल्कस, तो उसको फिर आप स्प्लिंट कर सकते हैं। तो ये स्प्लिंट नहीं होगा, सिंपली इस दोनों को रिमूव कर दे जो कोरोनल पार्ट है, और जो रूट पार्ट उसको छोड़ दे आप, दैट विल बी रिजॉल्व्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ इतनी रूट नहीं है, 1/3 मोस्टली रूट है, दैट विल बी रिजॉल्व्ड इजीली, क्योंकि वैसे भी रूट और तो मैक्सिलरी परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर वो आ रहे हैं, तो वो नेचुरली रिजॉल्व हो जाएंगे उसके। तो दिस सिंपली सर जी सर इसमें जो सर हम ये अपाइकल तर्ड की रूट्स को छोड़ देते हैं, तो इससे कोई इन्फेक्शन या होता रिस्क है, नहीं होगा टर्नर? नहीं होता है, दोनों केसेस में रिस्क होगा ना। एक तो अगर आप इसको निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए अच्छी खासी आपको सर्जरी करनी पड़ेगी ना, तो दैट सर्जिकल जो प्रोसीजर होगा इवन कैन डैमेज योर सेंट्रल इंसाइड। बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो तो दोनों पेशेंट को में फॉलो रिस्क। में रखेंगे। हाँ, तो इट बेटर कि इसको आप छोड़, क्योंकि इतना रूट पोर्शन इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, और सेंट्रल इंसाइजर आर कमिंग, तो दैट विल बी रिजॉल्व्ड, नो प्रॉब्लम। अच्छा, लग्जेटिव इंजरीज की हम बात करें, इन केस ऑफ प्राइमरी टीथ कंकशन को कैसे डिफाइन करोगे आप? सर उसमें सर ना सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो तो लाइक सर इन्वॉल्व है दोनों। मोबिलिटी एंड लग्जेशन, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता। जी, लग्जेशन हाँ सर। इंजरीज में जो है वो आपका सपोर्टिव टिश्यूज तो इन्वॉल्व सब में होते हैं, वो कंकशन हो, सब लग्जेशन हो, इंट्रूजन एक्सट्रूजन हो, व्हाटएवर, तो लग्जेशन में तो स्पेरोडोनशियम इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो कंकशन को टिपिकली कैसे डिफाइन करेंगे आप? सर इसमें ना पेन मोबिलिटी नहीं होगी और पेशेंट में पेन होगा। पेन ऑन परकशन विदाउट मूव। पेन ऑन परकशन होगा। यस सर। तो is very minor kind of injury involving पेरीरेडिकुलर टिश्यूज। पेशेंट जो है जाहिर है वो आते हैं तभी आपको पता चलता है, मोबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, टूथ इज नॉट सो, तो लिटिल बिट मोबिलिटी आप यू कैन से, बट टेंडर होगा टूथ परकशन पे। तो पेशेंट मोस्टली आपको यही कहता है कि हाथ लगाने से या ऐसे ऐसे थोड़ा मुझे दर्द होता है, और मैं कल या परसों गिर गया, तो ये जो उसके पेरेंट्स आपको इस तरह से बताते हैं, तो हल्की सी टेंडरनेस होगी और नथिंग, ओके, tooth is not mobile and nothing, patient can give you the history कि हाँ मुझे थोड़ी कोई क्रिकेट का बॉल, जो दूसरा बॉल वो लेदर वाला नहीं, वो दूसरा बॉल वगैरह कभी लग जाता है, या कभी ऐसे कोई हल्की फुल्की चोट लग जाए, तो इन दैट केस जो है वो टूथ बिकम टेंडर टू परकशन but not mobile, that is we call it concussion। तो नो ट्रीटमेंट उसमें आप में यहाँ लिखा हुआ है, प्राइमरी टूथ हो तो जस्ट उसको समटाइम्स थोड़ा अक्लूजन रिलीव कर देते हैं, ताकि वो अक्लूजन में तो उसका थोड़ा सा ट्रॉमा, कभी समटाइम्स बच्चे होते हैं तो वो जब टकराते हैं दांत तो इट फील पेन, तो जस्ट रिलीव द अक्लूजन समटाइम्स and give some painkiller if patients otherwise there should be no any treatment। तो सब लग्जेशन और कंकशन में क्या फर्क होगा कि सब लग्जेशन यहाँ थोड़ी सी हल्की सी मोबिलिटी होगी विथ टेंडरनेस, टूथ इज टेंडर टू परकशन and little bit mobility, that is the difference between concussion and subluxation। कंकशन में टेंडर टू परकशन होगा मगर मोबिलिटी नहीं होती, अगर थोड़ी मोबिलिटी हो जाए तो इट मींस इट वी कॉल इट सबलक्सेशन। तो अगेन सेम ट्रीटमेंट दोनों का वही होगा, उसमें कोई और मजीद हम प्रोसीजर नहीं करते, जस्ट लिटिल बिट अक्लूजन रिलीव कर देते हैं, मैं एनालिसिस दे देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे एंड एवरीथिंग। तो मोस्टली सबलक्सेशन और ये इंजरी परमानेंट टीथ में तो होती है, तो उसमें ज़्यादातर उसका जो
कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो ये होते हैं कि कैल्सिफिकेशन हो जाती है, कैल्सिफिक मेटामॉर्फोसिस आपने टर्म सुना होगा। तो आगे चल के ऐसा ऐसे क्योंकि पल्प अंडर स्ट्रेस होता है वो उसमें, तो वो सर्वाइविंग और डेंटिन डिपोजिशन ज़्यादा होती है और आगे चल के चांसेस होते हैं कि पल्प पूरा कैल्सिफाइड हो जाए और या कब समटाइम रिजॉर्प्शन हो जाती है। तो सबलक्सेशन इंजरी में की कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकती हैं, बट नॉट एन ऑलवेज टाइम। पर प्राइमरी टीथ में तो कोई ऐसा इशू नहीं हो। लेटरल लक्सेशन जिसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट हो, वो समटाइम्स कोई भी डायरेक्शन में हो, लेबियली हो, पैलेटली हो, tooth is displaced from its position with mobility, with same tender to percussion on all the, जैसे इससे पहले मैंने केस बताया था कि जजावल सर्कस से ब्लीडिंग हो रही थी, the tooth is little bit labially displaced, so that we call lateral luxation। तो यहाँ आप देखिए ट्रीटमेंट अगेन रेडियोग्राफ फॉर रूट फ्रैक्चर में आप लेकिन लक्सेशन इंजरी समटाइम्स उसमें रूट फ्रैक्चर भी होती है और नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स स्पॉन्टेनियस रिपोजिशनिंग हो सकती है अगर आप कोई इंटरफेरेंस रिमूव कर दें, बट मोस्टली वी नीड टू रिपोजिशनिंग इट मैन्युअली हाथ से या समटाइम्स फोर्सेप से उसको आप पोजीशन पे ले आएंगे वापस और स्प्लिंट करेंगे फॉर 2 to 3 weeks और एक्सट्रैक्शन। सो हाउ यू decide that tooth should be extracted or it should be repositioned and splinting। Now splinting हम जब करते हैं जब लक्सेशन पेरोडोंशियम इन्वॉल्व हो तो डेफिनेटली हम स्प्लिंटिंग करते हैं, ठीक है। और रूट फ्रैक्चर में स्प्लिंटिंग करते हैं जब मोबाइल हो, टूथ इज मोबाइल हो और रूट फ्रैक्चर हो तो उसमें भी स्प्लिंट करते हैं। बाकी प्राइमरी टीथ में हार्डली हम स्प्लिंटिंग करते हैं, एक तो बच्चे होते हैं और ये होते हैं, और दूसरा उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि वो इन्फेक्टेड हो और डैमेज हो। मगर अगर टूथ इज ओके एंड उसको इतना पेशेंट की एज भी है तो उसमें हम 2-3 साल अभी हैं टूथ को शेड होने में, तो दैट्स बेटर टू गो फॉर रिपोजिशनिंग ऑफ दैट डिस्प्लेस्ड टूथ। अगर सीवियरली डिस्प्लेस नहीं है तो इट्स बेटर टू गो फॉर रिपोजिशनिंग इट एंड स्प्लिंटिंग इट फॉर 2 to 3 weeks। और एक्सट्रैक्शन एडवाइस कर सकते हैं if it is tooth is about to shed or permanent tooth is about to come, तो in that age stage of the age you can go for extraction even। तो इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट करने की बच्चे में कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स के उसको रिपोजिशन करें, उसको स्प्लिंट करें, तो बहरहाल दैट विल डिसाइड सम टाइम अदर फैक्टर्स, स्पेशली जैसे मैं बताया कि एज अब तक है, बिहेवियर क्या है, इस चाइल्ड कोऑपरेट करना है नहीं कर रहा, समटाइम्स नॉट कोऑपरेटिंग एट ऑल, और एक मौका मिला तो दांत बस निकाल ही दो, क्योंकि जाहिर है इन दिस केस कि आप रिपोजिशन करें, स्प्लिंट करें, फिर वो स्प्लिंट समटाइम्स लूज भी हो जाते हैं, फिर वो हील हो और फिर दोबारा अब बच्चे को बुलाएं, फिर स्प्लिंट रिमूव करें, so it needs some more cooperative child, so if it is not then it's better to go for extraction, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा कि जाहिर है एक होती तो है एक प्राइमरी टूथ की इम्पोर्टेंस, पर जाहिर है इट इज अ टेम्पररी, तो इस पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इंट्रूजन अगर प्राइमरी टूथ इंट्रूड हो जाए तो क्या करोगे बताएं। So we will allow it to re-erupt, कर सकते हैं एक्सरे के बाद जब अलो टू री-इरप्ट, ठीक है। और कुछ सर रिलेशन चेक करेंगे परमानेंट के साथ, रिलेशन तो परमानेंट के साथ क्या कैसे क्या क्या देखना चाहेंगे आप रिलेशन? मतलब वो लिंगुअली इंट्रूड हुआ है या
बकली यस, या लेबियली। वेरी गुड। कि इट इंट्रूड लेबियली और लिंगुअली। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक्सरे करते हैं, लेटरल व्यू देखते हैं उसमें कि टूथ इफ इट इज इंट्रूडेड लिंगुअली it is damaging. So always lingual intrusion of primary tooth is damaging to permanent teeth. It should be removed immediately. Tooth should be removed immediately. Or if it is away from the developing tooth, permanent tooth, then you can leave it. Okay. If you leave it, what will happen? Either it will come out spontaneously or it will be resorbed inside. क्योंकि रिजॉर्प्शन तो एक प्राइमरी टीथ की एक प्रॉपर्टी है कि वो रिजॉर्ब होते हैं, उसको जो भी प्रेशर आ जाएगा तो रिजॉर्ब हो जाएगा, या स्पॉन्टेनियसली समटाइम्स इवन इट विल कम आउट। तो दो डिसीजन हम लेते हैं कि उसको रिमूव किया जाए या उसको छोड़ दिया जाए जो इंट्रूडेड टूथ है। That decision depend upon the path of intrusion, the direction of the intrusion. And if it is a labial intrusion, it's okay. If it is a lingual intrusion, it is not okay. It should be removed. उसको आप छोड़ नहीं सकते। बाकी इसमें कोई आर्थोडोंटिक नहीं यूज होती कि उस प्राइमरी टूथ को आर्थोडोंटिकली बाहर निकालें, जैसे हम परमानेंट टीथ में समटाइम्स ये ऑप्शन होता है कि अगर मोस्टली अगर उसको टाइम ज़्यादा हो गया, इंट्रूडेड टूथ है और वहाँ वो क्योंकि इंट्रूड हो जाए वहाँ फिर पीडीएल स्टेबल हो जाए तो देन इट विल नॉट कम इवन सर्जिकली, तो देन द आर्थोडोंटिकली आहिस्ता आहिस्ता यू कैन एक्सट्रूड द टूथ एंड दैट ओनली इन परमानेंट टीथ because orthodontic takes time and all this option cannot be in primary teeth. तो primary teeth में आप दो options हैं, या उसको remove करें if it is lingual, or if it is away from the labial side then you can leave it. ये सब लक्सेशन इंजरी है, टूथ अपनी पोजीशन में थोड़ी बहुत मोबिलिटी है, जंजाइवल सल्कस से ब्लीडिंग हो रही है, इट इंडिकेट द इंजरी टू द पेरोडोंटल टिश्यूज and that simply there should be no treatment at all. एक्सरे आप कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर वगैरह, अदरवाइज you can see in this picture lateral luxation, जो टीथ है वो लक्सेट हो गए हैं, डिस्प्लेस्ड लिंगुअली उसके डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दिस केस समटाइम्स यू कैन रीपोजिशन दीज टीथ अगेन इनकी जो लेबल पोजिशन पे ले आएंगे एंड यू कैन गो फॉर स्प्लिंटिंग फॉर 2 to 3 weeks तो थोड़ा स्टेबल हो जाए एंड देन दैट्स इट। ओके, so again vitality will check and all these things. If needs a root canal or sometimes you can go for root canal. So this is how you can do that. अब ये देखें a severe luxation, central incisor जो है it's displaced है severely labial side। बच्चे की उम्र अभी बहुत छोटी है, समझें कि सिर्फ ए और बी सेंट्रल और लेटरल आए हैं और कोई दांत नहीं आया हुआ। क्या एज हो सकती है इस बच्चे की? जी एक साल हो गए। 9 months 11 month 1 year under the bit close to 1 year। ओके, तो ये बच्चा जो है आपके पास आया है, क्या करना है इसका? गिर गया बेचारा, वो क्रॉलिंग करते हुए नीचे गिर गया। जी सर निकालना पड़ेगा ये वाला दांत, तो लेबियल बहुत ज्यादा मूव हो गया है। जी ये कोई किचन ये में जो सर लेबियली डिस्प्लेस्ड टूथ है, इसकी सर हम मोबिलिटी देखेंगे कि अगर इसकी मोबिलिटी ग्रेड 3 में हो तो उसको हम सिंपल एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर ग्रेड 2 में हो तो वी कैन रिप्लेस इट। भाई ये ग्रेड 3 से तो बात आगे नहीं, इतना सीवियरली डिस्प्लेस्ड है तो ये तो है, तो जाहिर है जैसे मैं शुरू में करना पड़ेगा। हाँ तो हाँ
जो सीवियर डिस्प्लेसमेंट है वो आप इसको और बच्चा 1 साल का, इसको स्प्रिंट देना इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल। तो उसमें आप ये डिसीजन ये होगा, इट्स बेटर डिसीजन टू रिमूव द टूथ। ठीक है ना, सिंपली। अच्छा, एक्सट्रूजन को कैसे डिफाइन करोगे? लेटरल लक्सेशन, इंट्रूजन एंड एक्सट्रूजन। जी So complete separation of the tooth from its socket. complete separation from the tooth from its socket। कोई इसमें और सही तरीके से मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आई, कोई और समझाए मुझे, थोड़ा सा बताए कोई। When a tooth is slightly supraerupted from its line of occlusion. just coronal जो line of occlusion, लाइन ऑफ जो भी उसकी है उसमें मूवमेंट हो, okay, it's come out of the socket, not completely, okay, just move out of the socket, that is your extrusion, okay। ज़ाहिर सुप्राक्लूजन में आ जाएगा टूथ, तो इट इज एक्सट्रूजन। सेम लक्सेशन इंजरी उसमें जो आपकी होगी, पेरोडोंशियम इंजर्ड है, टूथ नीचे आ गया, बाहर आ गया थोड़ा बहुत, अब ट्रीटमेंट उसका क्या करोगे? रेडियोग्राफ एग्जामिनेशन फॉर एनी अदर इंजरीज और रूट फ्रैक्चर्स। डिग्री ऑफ एक्सट्रूजन अगेन कितनी डिग्री से, थोड़ा है, बहुत ज्यादा है, यहाँ समटाइम्स मोर कम आउट। मोबिलिटी, एबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू कोप विद द ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें इसमें प्राइमरी टीथ में सब हर उसमें लगेंगी। माइल्ड एक्सट्रूजन है तो वही मैनुअल रिपोजिशन करेंगे, टूथ को रिपोजिशन करेंगे इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड स्प्लिंटिंग कर देंगे। अगर सीवियर कोई एक्सट्रूजन है, जैसे सीवियर लेटरल लक्सेशन थी, तो फिर जाहिर है एक्सट्रैक्शन ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये इस तरह से जब लक्सेशन इंजरी डिस्प्लेस्ड हो तो फिर जाहिर है रिपोजिशन होती है, टूथ को अपनी पोजीशन पे ले आते हैं और स्प्लिंट करते हैं उसको एटलीस्ट फॉर 2 to 3 वीक्स। तो अगर ज्यादा स्प्लिंटिंग कर, अभी जो परमानेंट टीथ में हम करेंगे डिस्कस, तो फिर मैं उसमें स्प्लिंटिंग को थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे, द टाइप्स ऑफ स्प्लिंट क्या होते हैं और कितनी इंजरी के लिए कितनी देर तक स्प्लिंट देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ सिंपली आप इसको कहेंगे कि थोड़ी बहुत एक्सट्रूजन है तो देन गो फॉर रिपोजिशनिंग। और अगेन जो दूसरी की चाइल्ड की जो बिहेवियर क्या है, एज क्या है, और टूथ को ये एट द टाइम जो केस टू केस डिसाइड समटाइम्स कि टूथ को निकालना बेहतर होगा या इसको रिटेन करना बेहतर होगा। तो रिटेन करना होगा तो जाहिर है फिर मैनुअल रिपोजिशनिंग करेंगे आप उसकी एंड स्प्लिंटिंग करेंगे। चलें जी, ये जिस तरह से सीवियर एक्सट्रूजन है, तो अगर आपको टीथ को, हाँ जी सर, ये जितने भी माइनर लैक्सेटिव इंजरीज है जिसमें सर हम टूथ को रिटेन करते हैं, प्राइमरी टूथ को रिटेन और रिटेंशन और स्प्लिंटिंग के बाद सर हम पल्पल ट्रीटमेंट करेंगे कि छोड़ेंगे ऐसे ही उसको? यस, गुड क्वेश्चन। सो हाउ यू डिसाइड इट? पल्प, वही मैंने बताया कि इन इनिशियल केसेस में समटाइम पल्प का रिस्पांस जो है वो रिलायबल नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है कि जल्दी हम रूट कैनाल स्टार्ट कर लें। तो अगर आप स्प्लिंटिंग करने के बाद वाइटलिटी चेक करते हैं, अगर वाइटल है टूथ तो दैट्स ओके। मोस्टली लक्सेटिव इंजरी के साथ देयर आर द चांसेस कि पल्प भी डैमेज हो जाए, बट इट नॉट ऑलवेज कि पल्प डैमेज हो। sometimes pulp vitality remain intact, ठीक है, तो that needs to be checked after splinting and all that, check कि pulp is responding or not responding, or periodically check any periapical lesion appear or like this, then of course the root canal treatment should be done, otherwise not always। ठीक है, तो ये आप चेक करेंगे उसको और then will decide कि root canal treatment is required or not required. It depend upon the vitality response of the pulp and radiographic changes any. For example, any
periapical pathology appears, any root resorption, internal, external like this, then root canal treatment or sometimes extraction even. ठीक है सर ऐसी कोई वाइटलिटी टेस्ट नहीं है जो हम इमीडिएटली आफ्टर ट्रॉमा कर सकते हैं, जैसे मतलब ये एपीटी और कोल्ड टेस्ट सारे नेगेटिव आते हैं? जी वो है आपका जो ब्लड पल्स ऑक्सीमेट्री, जो पल्स ऑक्सीमेट्री है, और लेजर डॉपलर फ्लोमेट्री जो है, ठीक है। मोस्टली लेजर डॉपलर फ्लोमेट्री आपको बताती है कि वाइट ब्लड सप्लाई इंटैक्ट है कि नहीं है, वो रिलायबल है, बिल्कुल रिलायबल है। मगर दे आर क्लिनिकली आप देखें कि हम ज़्यादातर ये सेंसिबिलिटी टेस्ट करते हैं, इसको हम वाइटलिटी इसलिए भी नहीं कहते क्योंकि वाइटलिटी मीन्स ब्लड, तो ब्लड को तो ये चेक नहीं करते, ये सिर्फ नर्व रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। तो नर्व रिस्पॉन्स इज नॉट सो रिलायबल और नॉट इंडिकेटिंग द पल्स। समटाइम नेक्रोटिक पल्प में कोई नर्व जो है वो जिंदा रह जाती है, और सी फाइबर्स जो पल्प के होते हैं दे आर मोर रेजिस्टेंट टू हाइपोक्सिया, तो वो रिस्पॉन्ड कभी करते हैं, पल्प पार्शली जो है वो नेक्रोज भी होता है, तो इवन दैट, तो इन दैट केस वो अगेन वो रिलायबल नहीं होता। तो वो ये रिलायबल है, अगर अब वो इतना क्लिनिकल यूजेस में नहीं है, पल्स ऑक्सीमेट्री है वो गई या लेजर डॉपलर फ्लोमेट्री हो गई, ठीक है ना, तो दे आर मोर रिलायबल। तो ये एक्सट्रूजन हो गई, और लास्ट में है इंट्रूजन, तो हमने पढ़ लिए। मगर यहाँ टूथ अगेन बच्चा आप देखें कि सेंट्रल लेटरल आए हुए हैं, बाकी कोई दांत नहीं है, वही 1 साल का बच्चा मैक्सिमम होगा, टूथ इज मिसिंग। ट्रीटमेंट क्या होगा? जी सर रेडियोग्राफ करेंगे तो पता चलेगा क्यों टीथ है करेंगे? भी या नहीं, टीथ है भी या नहीं है, एवर्स तो नहीं होगा। हाँ वेरी गुड, रेडियोग्राफ आप जरूर करेंगे कि टूथ अगर बच्चे उसके पेरेंट्स के समटाइम्स दांत हाथ में लेके आते हैं कि ये दांत है, फिर तो ठीक है, हमें देख रहे हैं कि दांत बाहर बढ़ा है। अगर नहीं है तो फिर रेडियोग्राफ जरूर करना है आपने, कि देखना है कि इंट्रूडेड तो नहीं है, ठीक है, तो रेडियोग्राफ जरूर लेना है। तो ये देखनी है। इंट्रूजन की हम बात करेंगे, ये समझें कि एवल्स्ड हुआ है टूथ इज, अच्छा ये इंट्रूडेड, ये एक मेरे पास पिक्चर थी, ये इंट्रूडेड है और इंट्रूजन का केस है, एवल्जन का नहीं है, और ये छोड़ दिया गया था इसको, और कुछ आफ्टर time you can see is a re-eruption, spontaneously it re-erupt। तो अगर ये कंप्लीट इंट्रूड हुआ है यहाँ तो छोड़ दें, मगर ये वो एक्सरे देखना होता है कि इंट्रूजन जो है जैसे लिंगुअल हो गई तो वो इस मोर डैमेजिंग, तो ये है, ठीक है। और ये देखिए अगेन स्पॉन्टेनियस री-इरप्शन ऑफ इंट्रूडेड टूथ, 3 वीक्स एंड 5 मंथ में तकरीबन टूथ वापस आ गया है। ये केस है एवल्जन का, दांत आपको नजर आ रहा है, क्या करोगे? कभी कभी वही दोबारा इम्प्लांट कर देंगे। घर में बैठे हुए हैं, बच्चा गिर गया, दांत निकल आया, या कभी कभी आपको फोन आ जाता है कि बच्चा गिर गया है, दांत निकल गया है। अच्छा अब आप इस पे क्या करोगे? प्राइमरी टूथ है, सेंट्रल इंसाइजर एबल्स हो गया है जी, तो दोबारा लगा देंगे। दोबारा लगा दोगे, जिसको हम कहते हैं रीप्लांटेशन, ठीक है, रीप्लांटेशन कहते हैं जिसको हम, दैट इज दोबारा लगाना। हाँ रीप्लांटेशन करोगे इसमें? यस सर। पंगा लोगे मतलब ये? यस सर टाइम पे डिपेंड करता है कितना वक्त पहले निकला है। हाँ हाँ यस वेरी गुड, ठीक है, ये आधा घंटा पहले निकला है। लगा देंगे सर, आधा घंटे में तो कोई मसला नहीं है। लगा देंगे,
तो रीप्लांट और करेंगे सर। पेशेंट के फोन एज करता पे है भी तो देखेंगे कि अगर पेशेंट 6 ईयर ओल्ड हो या 5 ईयर ओल्ड हो तो फिर वैसे भी परमानेंट आ रहा है, तो फिर हमें प्लांटेशन की जरूरत तो नहीं। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं रीप्लांटेशन के? जैसे आपने कहा कि टाइम आधा घंटा हो गया, या आपने कहा कि टाइम मैटर करता है, तो टाइम क्यों मैटर करता है रीप्लांटेशन में? सर पेरिडोंटल सेल जो है ना वो डेड हो जाए। पेरिडोन्टियम डेड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर सर वो सर मतलब फेलियर टू रेडिएट रीप्लांट करना होता है पड़ेगा। उसकी वजह से। एनकाइलोसिस भी हो सकती है अगर फिर इम्प्लांट कर देते, या फिर बाहर ही आ जाएगा वापस। बाहर कम आता है, स्प्लिंट कर देते हैं उसको, तो एनकाइलोसिस। सर कंटामिनेशन की वजह से इन्फेक्शन। एनकाइलोसिस जिस कहा उसने, तो एनकाइलोसिस इज कॉमन। एंड व्हाट इज एनकाइलोसिस? डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट जी, डायरेक्ट हो जाता है अटैचमेंट ऑफ द टूथ। हार्ट। सर फ्यूजन ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर विद बोन विदाउट पेरिडोंटल लिगामेंट्स। गुड। तो बोन पे पीडीएल तो सेल खत्म हो जाते हैं, जैसे आप लोगों ने कहा कि टाइम की वजह से पीडीएल तो गया, तो पीडीएल जो सरफेस सराउंडिंग द रूट वो सेल डेड, तो देन देयर इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ रूट और सीमेंटम विद द बोन, दैट वी कॉल एनकाइलोसिस। और आहिस्ता आहिस्ता बोन जो है वो रूट को खा जाता है, और इसलिए किसी को कहते हैं रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन। तो रूट रिजॉर्ब होती जाती है एंड बोन उसको रिप्लेस करता जाता है। मगर एनकाइलोस टूथ जो है वो इतना आसानी से रिजॉर्ब नहीं होता और इतना आसानी से रिमूव नहीं होता, ठीक है ना? तो ये चांसेस हमेशा रहते हैं, आइदर आप इमीडिएट रिप्लांटेशन करें और डिलेड रिप्लांटेशन करें। इमीडिएट मतलब 30 मिनट्स से पहले पहले पेशेंट आपके पास आ गया और 30 मिनट्स के बाद आ गया, तो इमीडिएट हो गई या डिलेड, तो एनकाइलोसिस के चांसेस हमेशा होते हैं। और जस्ट सपोज करें कि प्राइमरी टूथ एनकाइलोस्ड हो जाए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? सर परमानेंट डैमेज होगा, आएगा ही नहीं वो। आएगा ही नहीं, वो रिजॉल्व ही नहीं होगा, वो बहुत स्लो रिजॉर्प्शन होती है, तो परमानेंट तो जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा तो परमानेंट कैसे आएगा? लिंगुअल एरप्शन होगी उसकी, कभी डिस्क। होगी, कभी वो भी नहीं होगी, वो इम्पैक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कभी इम्पैक्टेड प्रीमोलर्स, स्पेशली मैंडिबुलर और समटाइम्स मैक्सिलरी इम्पैक्टेड प्रीमोलर देखें कभी? इम्पैक्टेड केनाइन मैंडिबुलर देखा? होता है, इम्पैक्टेड केनाइन इम्पैक्टेड देखा है? कैनाइन होते हैं, ये सब मैक्सिलरी। तो देखिए मरीज कभी कभी आते हैं, उसके 30-40 साल उम्र होती है, और अब देखते हैं कि यार इसका तो सी पड़ा है, समटाइम्स डी ई पड़ा हुआ होता है, तो उसको कहते हैं कि भाई आपके तो दूध वाले दांत पड़े हैं, तो बड़ा खुश होता है कि मैं अभी शायद बच्चा ही हूँ। हालांकि उसको पता नहीं कि अंदर वो जो टूथ वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, और वो अंदर जो परमानेंट टूथ है वो इम्पेक्टेड रह गया है, ठीक है? तो दोनों का होते हैं। अगर वो इम्पेक्शन मतलब डायरेक्शन सही नहीं होगा तो उसका फोर्स नहीं पड़ता, तो जो प्राइमरी टूथ है वो रिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि रिजॉर्प्शन का मैकेनिज्म आपको पता है। तो समटाइम्स अगर प्राइमरी टूथ एनकाइलोज्ड हो जाए तो फिर भी परमानेंट टूथ जो है वो उसका फिर प्राइमरी का परमानेंट पे फर्क पड़ेगा, तो वो इम्पेक्टेड होगा या फिर उसकी एरप्शन कहीं और से होगी। तो ये रिस्क आप क्यों लेंगे फिर यहाँ? तो there is a no replantation of a primary tooth, Ever's primary tooth, ठीक है? तो अगर प्राइमरी टूथ एवल्स हो जाए तो उसको रिप्लांट नहीं करते, कभी नहीं, क्योंकि इवन इमीडिएट, क्योंकि हमेशा चांसेस होते हैं उसके ऑलवेज के वो एनकाइलोस्ड हो जाए, तो ये रिस्क होगा और बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है ना? तो पेशेंट को आप काउंसलिंग करेंगे, बताएंगे कि भाई जो भी है प्राइमरी है गया, अब दूसरा आ जाएगा, ये करेगा वो, तो दिस कुड नॉट बी रीप्लांटेड, नेवर, ठीक है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस और वेरी डैमेजिंग, ये इनकाइलोस हो जाते हैं, और फिर वो सेंट्रल इंसाइजर परमानेंट वो प्रॉब्लम में आएगा, या डायलिसरेशन होगी, या कोई उसकी इरप्शन जो है किसी रॉन्ग प्लेस से होगी, या वो इम्पेक्टेड होगा।
So that risk should not be taken in a replantation of primary teeth is not advised at all. ठीक है? Yes. ओके, तो आज का टॉपिक ये प्राइमरी पे हम ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम परमानेंट टीथ पे हम बात करेंगे। तो प्राइमरी टीथ की मैंने बताया कि जहां आप समझ सकें कि रिटेंशन इज क्वाइट सेफ एंड बेटर, तो रिटेन द टूथ। और जहां आप समझें कि इट कुड बी नॉट पॉसिबल ड्यू टू द चाइल्ड एज, चाइल्ड बिहेवियर, और इट कुड बी डैमेजिंग टू द परमानेंट टीथ, वहाँ ये आप एक्सट्रैक्शन कुड बी बेटर। तो क्योंकि जाहिर है जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल आफ्टर ऑल द टीथ आर टेम्पररी, तो उसको आप उस कंटेस्ट में ले देख के और फिर ही जो है वो आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। मगर परमानेंट टीथ की मैनेजमेंट इज क्वाइट डिफरेंट। जो भी टाइप्स ऑफ ट्रॉमा होंगी आप देखेंगे कि उसकी थोड़ी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली हम कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके देन, आप क्वेश्चन अगर बाद में भी, जैसे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस पर भी अगर कभी किसी टॉपिक के बारे में या कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ भी आप ये कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो कोई आप पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कोई प्रीवियस टॉपिक्स में, तो क्वेश्चन छोड़ दिया करें उस पर भी, तो उस पर भी ये होगा कि आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ओके, जी सर, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।